Today is just not a gathering, it is a celebration of legacy, learning, and leadership that EMRS Karpavand has nurtured over the years. It gives me immense pleasure and pride as a principal of this institution to stand before you అక్కడ రేసు and this gathering that reflects the living success of our school's mission. Each alumni represent here is a testament of the values and vision the guide Eklavya Model Residential School under NEST. Dear fellows, I would like to make you clear that NEST was established with a powerful and transformative vision. The vision is to provide quality and equitable education of tribal students, enabling them to complete the national and global levels while remaining rooted in their culture, identity, and values. At EMRS Karpavand, I assure you, we translate this vision into daily practice of our life. In academic excellence with quality, character building, and leadership, preservation of tribal culture and their heritage, exposure to modern skills, technology, and innovation. Education here is not merely about agrees and disagrees or degrees. It is about empowerment of confidence and nation building worldwide. As a principal, I always try to create an environment where each and every student should believe in their potentiality. I also ensure to guide students to become responsible citizens, professionals, and community leaders, as many of you have shared your vision in this scope. Our alumni are our strongest ambassador. You are our ambassadors. Your achievements affirm that EMRS Karpavand is not just a school, it is a launching pad for dreams that may come true in coming years. My dear, as we move forward, EMRS Karpavand remains aligned with NEST policies focusing on digital learning and skill development, sports, art, and innovation, inclusive and student-centric learning. Together, we educators, students, parents, and alumni, we will continue to build an institution that shapes confident, capable, and compassionate leaders for the world. On this meaningful occasion, I urge our alumni to stay connected with our alma mater that are reading or studying in these schools. Your success strengthens our resolve and your association enriches our future. Let us walk together, guided by ideals of Prince Nest, inspired by our roots, committed to excellence. Once again, welcome back to EMRS Karpavand. That is your second home. During these years, a lot of changes have been occurred in our institution also. Many of us shared their vision. I would like to also focus some visions, some ideas which are changes in these institutions that are before. Please kindly be quiet a little bit. I will conclude. Before you coming here, someone has shared their views that there is a vehicle that is already ready for the students who are sick. Before it was not.
आपके आने से पहले यहाँ पर एक साथी ने बताया कि एक बच्चे ने बताया कि हमारे विद्यालय में अब जो चेंजेज हुए उनमें से एक है कि अब हम बच्चों के हर समय बीमार होने के लिए यहाँ पर एक व्हीकल रखते हैं, एक वाहन रखते हैं जो निरंतर जितनी बार भी आना जाना हो विद ड्राइवर वह इन बच्चों को लेके जाते हैं। फिर दूसरा महत्वपूर्ण हुआ कि हमने यहाँ सीएमओ साहब से और बीएमओ साहब से मिलकर के कोलैबोरेशन किया। नेस्ट की गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पर एक डॉक्टर की नियुक्ति हुई है जो इसी हफ्ते यानी कमिंग वीक से डॉक्टर हरीश मरकान जो खुद बीएमओ सर हैं वो यहाँ पर विजिट करेंगे ईच एंड एवरी वीक 2 or 3 टाइम्स, ताकि हमारे किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की जो मेडिकल फैसिलिटी है उससे वंचित ना रहा जा सके। मैं अपने एलुमनीज को बताना चाहता हूं कि हमारा जो एकलव्य विद्यालय है, नेस्ट है, उन्होंने इन बच्चों को, जो बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, ब्रिलियंट हैं, वो बहुत अच्छे जाते हैं, लेकिन अगर वे बच्चे जो एवरेज रहे हैं या किसी कारणवश उन्होंने अपनी एजुकेशन 10th के बाद 12th यहाँ से की और फिर वह आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसके लिए हम लोगों ने टाटा मोटर्स के साथ नेस्ट ने एक इनिशिएटिव किया, एक MOU किया, जिसमें वो बच्चे जो 12वीं के बाद किसी कारणवश उनकी शिक्षा नहीं हो पाती है आगे, तो वे बच्चे 6 महीने का सर्टिफिकेट और 1 साल का डिप्लोमा कोर्स करेंगे और कोर्स करने के बाद टाटा मोटर्स उनको अपने यहाँ ही इंगेज कर लेगा। उनकी स्टार्टिंग सैलरी, उनकी पैकेज 15 से 20 हजार से शुरुआत होगी और आगे उन बच्चों को कंटिन्यू किया जाएगा। उनको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो वहीं पढ़ेंगे और वहीं प्लेस होंगे। इसी दिशा में टाटा मोटर्स ने एक और इनिशिएटिव हमारे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों के साथ टाई अप किया। वह था कि वे बच्चे जो पास आउट हो गए, ये तो पढ़ने वाले थे, जो पास आउट हो गए 2020-22 बैच के, 23 बैच के, और जिनकी उम्र 18 साल है लेकिन वो कहीं प्लेस्ड नहीं है, कहीं अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए भी वो कह रहे हैं कि विद्यालय स्तर पे उनको जागरूक किया जाए कि वह इनेबल प्रोग्राम के जरिए, एक इनेबल प्रोग्राम है, उसमें अपने आप को रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी और 18 वर्ष के बाद वाले भी बच्चे जो हैं वो सारे ट्राइबल बच्चे टाटा मोटर्स से जुड़ेंगे और उनको प्लेस किया जाएगा। यानी कि आप पढ़ाई के साथ भी हैं हमारे साथ और पढ़ने के बाद जब आप पास आउट होंगे तो भी हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। बच्चों के दिमाग में केवल मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे ही विषय रहते हैं। बहुत सारे शिक्षक साथी हमारे इस विषय में वकालत भी कर देते हैं, लेकिन हर बच्चे की अलग अलग फील्ड होती है। अभी उन्होंने एक कैरियर एडवाइजिंग ऐप करके डाउनलोड करके सभी लोगों को ट्रेन किया। हम अपने टीचर्स को भी ट्रेन करेंगे, जिसमें लगभग 500 से ज्यादा कैरियर ऑप्शंस हैं और हर एक बच्चे को उसमें फीडिंग करनी है, सारे डाटा भरने जाने हैं और उन बच्चों की एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगी और ये सारा टेस्ट नेस्ट के जरिए आयोजन किया जाएगा, जिससे बच्चे की पोटेंशियलिटी पता चले कि ये बच्चा किस फील्ड में ज्यादा बेहतर कर सकता है। जिसमें अभी हमारे किसी साथी ने बताया था कि वह खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी के जरिए भी 6 से 9 लाख रुपए कमा सकते हैं। ऐसे बच्चों को भी ट्रेन किया जाएगा कि अगर वह खेती बाड़ी चुनते हैं तो कैसे ऑर्गेनिक खेती आप करके वह अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और देश के अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकते हैं। आप सभी लोग देश के एक अमूल्य धरोहर हैं। आपको सरकार ना छोड़ना चाहती है और किसी भी स्तर पे आपको अकेला नहीं रहना चाहती है। वो कहते हैं कि जहां चाह है वहीं रहा है। अगर आपने अपने मन में ठान लिया है, सोच लिया है, तो नेस्ट आज भी आपके साथ अपना जुड़ाव महसूस करता है और आगे भी करता रहेगा। यह उनकी तरफ से हमारे द्वारा आपको आश्वासन दिया जाता है। मेरे साथियों, आपको यह भी मैं बताना चाहूंगा कि नेस्ट जो है इन बच्चों के मेडिकल और क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 2 प्रकार के प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसे आप इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को बता सकें। ठीक 3 बजे हमारे यहाँ से पेस IIT मुंबई, ये बहुत बड़ी फाउंडेशन है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं।
पेस आईआईटी मुंबई की तरफ से लगभग 1.5 घंटे का प्रोग्राम होता है, जिसमें उन बच्चों को वो सिलेक्ट करते हैं जो बच्चे आईआईटीएंस बनने की तरफ अग्रसर हैं। उन बच्चों को पेश आईआईटी मुंबई 1.5 से 2 घंटे का एकदम कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक वाइज रोज इनको पढ़ाता है ऑनलाइन, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगना। ये हमारे का बच्चा उसका लाभ ले सकता है। यह बाइलिंगुअल भी है, यानी कि हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। अगर बच्चे को कहीं कोई दिक्कत होती है तो वह हिंदी को पढ़े या हिंदी माध्यम से उसको जानकारी ले, और अंग्रेजी में अगर वो कंफर्टेबल है तो इंग्लिश को ले, क्योंकि अंग्रेजी को हम छोड़ नहीं सकते। हमारा बच्चा अब चूंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहा है तो वो नीचे से ही बढ़ता चला आ रहा है, क्योंकि प्रश्न बहुत अच्छे से उसको इंग्लिश में पूछे जाएंगे, तो उसको नर्चरिंग यहीं से होनी शुरू होती है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रोग्राम आपको मैंने इनेबल का बताया कि इन बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए किया जाना है। जितने भी अभी तक के कार्यक्रम थे भारत सरकार के, सभी को डिजिटल ऑनलाइन मोड से नेस्ट ने शुरू कर दिया है। जब आप मान लीजिए कोई बच्चे के पास एक हर्डल हो सकता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम अच्छा टैलेंटेड बच्चा है लेकिन पैसा नहीं है, वो आईआईटी क्वालिफाई करता है प्रीमेंस और एडवांस, तो आगे क्या करें। इस विषय में भी कमिश्नर साहब ने बताया, ऐसे बच्चों के लिए हमने बैंकों से भी टाई अप किया है, और ये बैंक जो हमारे नेशनलाइज्ड बैंक हैं, अगर वो बच्चा मेंस क्वालिफाई करता है, एडवांस क्वालिफाई करता है, तो उसको पैसे की चिंता नहीं जरूरत है। आपको उस संस्था में जाना है और अपना ये ट्राइबल जो आपको कार्ड मिला है कि हम हैं, इसके जरिए आपको कोई भी बैंक आपको लोन देगा। जब आप अपनी पढ़ाई कर लेंगे, 6 से 7 साल जो भी आपका एमटेक बीटेक मिला करके होगा, करने के बाद तब आपसे बहुत मिनिमम 3 से 4% चार्जेज लगेंगे, ताकि जब आप प्लेस हो जाइए तो आप अपने उस जो भी आपका रुपया पैसा रहा है उसको आप चुका दीजिए। यह व्यवस्था केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी है। तो अब पैसे की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेस्ट बार बार कहता है कि ये सारी चीजें, ये पॉलिसीज हमारे साथियों को बताएं, जिससे लोगों को यहाँ पर आने की प्रेरणा मिले। हम 730 के आसपास हैं, यानी कि 730 विद्यालय लगभग या तो खुलने वाले हैं या एकदम वह अपने ओपनिंग स्टेज पे आ गए हैं। वर्तमान में हम लगभग 499 फुल फ्लेज्ड रन कर रहे हैं, यानी कि यह संख्या बहुत जल्द हम नवोदय को क्रॉस करके केंद्रीय विद्यालय की श्रेणी में, यानी सेकंड मोस्ट सीनियर या लार्ज हम संस्था के रूप में विकसित होने जा रहे हैं। आदरणीय माननीय मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री जुएल ओराम जी ने इसी बात को जिक्र किया। हम लोग अभी हाल ही में जब प्रिंसिपल कॉन्क्लेव में गए थे, उन्होंने कहा पैसे की कोई हमारे को दिक्कत नहीं होगी। और अब तो सभी स्टेट के लोग, जहां भी हमारी ट्राइबल थोड़ा सा पॉपुलेशन है, अब सभी लोग मांग करने लगे हैं कि जैसे केंद्रीय विद्यालय हर स्टेट के हर एक जिले में होना चाहिए, अब ऐसे ईएमआरएस भी हर एक जिले में होना चाहिए, जहां की आबादी 20,000 के आसपास है। अगर 20,000 के आसपास आबादी है और उससे भी ज्यादा है, 40,000, 50,000, तो वहां पर 2-2 ईएमआरएस खोलने के बारे में भी सरकार विचार कर रही है। तो ये तमाम बातें हैं, पॉलिसीज हैं, जहां पर हमारा ये जो वर्ग है अब वह समाज की मुख्य धारा से जुड़ेगा। क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा, और इस आशा के साथ कि इस कार्यक्रम में आदरणीय एसी सर हमारे साथ आए, ये हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। अत्यंत हम बहुत हर्षानुभूति फील कर रहे हैं कि सर ने अपने व्यस्ततम समय में से ये समय निकाल करके आज हमारे लिए रखा। सर, हम आपको अपने तहे दिल से हार्दिक आभार, अभिनंदन व्यक्त करते हैं कि सर अपना समय आपने दिया। इसी तरह हमारे जो पूर्व शिक्षक साथी श्री अनिल दास जी आए हमारे एकमात्र निवेदन पर। सर, आपको भी मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार आपके प्रति व्यक्त करता हूँ। आदरणीय मुकेश सैनी सर ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, तो हम उनको भी अपने हृदय से उतना ही आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े, अपने विचारों को शेयर किया। और सबसे बड़ा आभार मैं सबसे बड़ा आभारी आप सभी एलुमनीज का हूँ, जिन्होंने इतनी जो हमारी टीम के साथ आपने कोलैबोरेशन किया, आज उपस्थित हुए और अपने विचारों को शेयर किया।
मैं अपने शब्दों में अगर बयां करूं तो वह उसका केवल 5 से 10% होगा। हृदय मेरा 90% आपके आभार से दबा हुआ है। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप बार बार विद्यालय में आएं, जब भी आपको बुलाया जाए अपने विचारों को बड़े सम्मानजनक तरीके से हमारे साथ रखें और अपने नन्हे मुन्ने छोटे भाइयों को गाइड करें, क्योंकि इनमें से अधिकांश बच्चे जब पहली बार आते हैं तो होम सिकनेस का शिकार होते हैं। और मैं अक्सर इनके साथ शाम के 8:30, 9, 10 बजे तक भी घूमता रहता हूँ इसी हॉस्टल में, क्योंकि मैं यहीं रहता हूँ और इनसे पूछता रहता हूँ कि मैं तुम्हारा पिता के समान हूँ, तुम्हें अपने जो बात अपने पिता से कहने में संकोच नहीं होनी चाहिए, तुम मुझे वो बातें कह सकते हो। लगातार स्वास्थ्य, जल, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, हमारे पास जितने संसाधन हैं हम उनको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश आज नहीं है, अभी निरंतर होगी। हर दिन कुछ न कुछ नया बदलाव हम लाने की कोशिश कर रहे हैं आदरणीय एसी सर के मार्गदर्शन के और ऊपर के हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा, जिनका सहयोग निरंतर हमें मिलता रहा है और ऐसा ही मिलता रहे। इन्हीं आशाओं और विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बस्तर, जय हिंद, जय एमआरएफ।